రోజు లక్షలాది మందిని గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తూ భారతీయ రైల్వే ఎన్నో సేవలందిస్తోంది. విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల ప్రాంత వాసులకు ఎన్నో సేవలందిస్తూ వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న రైల్వేలో భాగమైన వాల్తేర్ రైల్వే అభివృద్ధి గురించి వాల్తేర్ డివిజనల్ మేనేజర్ అనూప్ కుమార్ శతపథి చెప్పిన విశేషాలను వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. Vizag Vision viewers andarki namaskaram. Today we are here with the Divisional Railway Manager of Voltaire Division. Shri Anup Kumar Satpathy is the Divisional Railway Manager of Voltaire Division. He previously worked as the Additional DRM of Nagpur. Let us get to know more about him through our short personal interview. Hello sir. Yes, hello. Sir, can you tell us a little bit about your education, your family and your career? I was educated from Utkal University, Odisha. Then I did an MBA long after this when I was posted at Nagpur. Career wise, I am an Indian Railway Traffic Service Officer of 1993 exam batch. I joined at a place called Shadol in Madhya Pradesh. And thereafter I moved on to different places like Bilaspur, Chakradharpur, Kolkata and then Nagpur. Before becoming additional DRM of Nagpur Central Railway, I was Chief General Manager of Container Corporation of India Limited, the Central Region. So that's how. Then after ADRM I came here and joined as Divisional Railway Manager. Sir, a little bit about your family. I have got a small family of one son, one daughter and my wife, Parijat. My wife is a landscape designer, a gardener. She is an expert in yoga, naturopathy, etc. And she is attached to some of the NGOs. My son is Akash, studying in US University of Arizona. He is pursuing his PhD in astronomy. And daughter is small one. She is doing she is in 12th class at Welham Girls School, Dehradun. So sir, are there any proposals of creating a suburban terminal in and around Dubada? Not exactly, in the sense that Dwada may not justify that at the moment. But yes, Dwada station is going to be redeveloped. And we are investing a lot of money in having a modern station building with much more facilities which can deal with more number of trains. So development of Dwada is on the cards, but we may not be able to call it a suburban terminal at the moment. So sir, भोगापुरम प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो क्या आप प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे एयर पैसेंजर्स के लिए एक हॉल्ट क्रिएट करेंगे? A long way off when the airport project takes off और जब डिमांड आएगा हम लोग उसको स्टडी कराएंगे. Sir, can you please tell us a little bit about bunching of trains in and around Visakhapatnam? See, but Visakhapatnam is one of the most important and one of the most congested railway stations in the country. We had only 8 platforms and there are 2 lines leading to Visakhapatnam terminal. As you know, it's a terminal station. Trains coming to Visakhapatnam do not escape from the other side of the station. They come through the same tracks and they go back on the same tracks. Therefore, there was a severe problem of bunching. Therefore, many things have been thought about in the past also, and we had proposed for more lines, doubling, tripling of the nearby sections. And I am very happy to inform you that recently we have taken up a few projects. Railway Board has very kindly sanctioned doubling and tripling of few of the sections in and around Visakhapatnam station, and there is a flyover which has been sanctioned also recently between Simhachalam and Pendurthi. All these things will address the problem of bunching to a great extent, and more number of trains can be introduced after this. Work of headquarters zone of wireless colony start. See, the project is on and the drawings etc. have been prepared. Various drawings are being evaluated, and our chief project manager and the chief engineer, they have studied it. When honorable minister was here, we have taken him to the site. He has seen the site himself. So things are on and they are progressing quite well. It can start after some time. के लाइन डेवलपिंग का काम कब तक खत्म होगा? के लाइन बहुत बड़ा है, करीब 540 किलोमीटर का है. सो उसमें इट इज़ रफली डिवाइडेड इनटू KK1 एंड KK2.
KK2 में केवल दांतेवाड़ा एंड किरंडुल के अलावा मोस्ट ऑफ द डबलिंग इज कंप्लीट अपार्ट फ्रॉम 2 मोर सेक्शंस जहां टनलिंग का काम है. तो एंड KK1 में लॉट ऑफ टनल्स, लॉट ऑफ कर्वेचर्स, लॉट ऑफ अलाइनमेंट चेंजेस आर इन्वॉल्व. सो काम तो बहुत तेज़ी से चालू है. मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल लग सकता है कंप्लीशन पूरा डबलिंग का प्रोजेक्ट. Sir, are there any proposals of metro train in Visakhapatnam? Visakhapatnam Metro, there is a project. It is not related to railways directly, but हमसे वो आके मिले थे and they need some help from railways which we are providing land etc. And project is on already. अभी वाइजैक के आसपास वंदे भारत ट्रेन और दुरंतो एक्सप्रेस का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है. तो सर, इज़ देयर एनी प्रपोजल्स ऑफ इंक्रीजिंग द हॉल्ट्स ऑफ रेलवेज? वंदे भारत का तो हमारे यहाँ बहुत छोटा ही सेक्शन कवर करता है, द्वारा से लेकर के विशाखापट्टनम तक. एंड सेम विद दैट दुरंतो गोइंग टू सिकंदराबाद. तो उसमें बहुत ज़्यादा और हॉल्ट की गुंजाइश नहीं है. लेकिन दे आर न्यू एडिशंस एंड वंदे भारत हैज़ ब्रॉट ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू दी रेल यूजर्स, टू दी पैसेंजर्स गोइंग टुवर्ड्स सिकंदराबाद. एंड जब और ज़्यादा डिमांड आएगा तो हम सोच सकते हैं कि और ज़्यादा ट्रेन इंट्रोड्यूस होंगे, कैसे होंगे. सर, आप हमको वंदे भारत ट्रेन के बारे में थोड़ा और बताएं. उसका बेनिफिट्स क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमको ज़रा बताएं सर. वंदे भारत देखिए, वंदे भारत एक 7 से 8 घंटा 9 घंटा जर्नी के लिए ट्रेन डिजाइंड है. वंदे भारत में सिटिंग सीट्स रहता है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली लग्जूरियस ट्रेन. वो दिखता है एकदम मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न ट्रेन है. उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, पब्लिक उसके ऊपर बहुत खुश है. एंड जब यहाँ वंदे भारत इंट्रोड्यूस किया गया 2 महीना पहले, इट वॉज टेकन एज ए गिफ्ट फ्रॉम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर टू दी तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स. और पैटर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा है. उसमें कंफर्ट, सेफ्टी, लग्जरी, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है. विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो है वो रीडेवलप होने वाला है. तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यू डेवलपमेंट्स होने वाले हैं वो कैसे होंगे? See, the present station building will undergo a total change. In the west side नया बिल्डिंग पूरा आ रहा है. बहुत सारे डिमोलिशंस होंगे, बहुत सारे शिफ्टिंग ऑफ फैसिलिटीज़ भी इन्वॉल्व रहेगा उसमें. विल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज विल हैव 2 more lines, new lines with 2 more new platforms entirely. Therefore पूरा स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है. इट विल बी एन अल्ट्रा मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन. ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का विज़न है. एंड इसमें काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज रहेगा. एंड देयर विल बी एयर कॉन्कोर्स, देयर विल बी मोर नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड एस्केलेटर्स एंड लिफ्ट्स. बहुत ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ रहेंगे. एंड काम ऑलरेडी चालू हो गया है इन द वेस्ट साइड. एंड इस साइड में भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं. सो एकदम कायाकल्प चेंज होने वाला है स्टेशन का. विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को छोड़ के और कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं? हमारे डिवीज़न में, वॉल्टेयर डिवीज़न में, वी हैव सो फार आइडेंटिफाइड ए टोटल ऑफ 18 स्टेशंस. 18 में से विशाखापट्टनम इज द बिगेस्ट. इसके अलावा रायगढ़ स्टेशन है विच विल ऑल्सो बी रीडेवलप्ड एट ए एक्सपेंडिचर ऑफ रफली 250 crores, 250 crores. देन 16 स्टेशंस का हमारा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जहाँ नया स्टेशन बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज, नया सर्कुलेटिंग एरिया, मोर पैसेंजर एमिनिटीज़ रहेगा. वो उस स्कीम का नाम है अमृत भारत स्कीम. तो अमृत भारत में 16 स्टेशंस वी आर कवरिंग, like stations like Vizianagaram, Srikakulam, then your Koraput, Raigada, that is Jaipur, etc. And Raigada and Visakhapatnam will be covered under the station redevelopment scheme. वॉल्टेयर डिवीजन का परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर, तो वो कैसा गया? आर यू सेटिस्फाइड विद इट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस इफ देयर इज अ सक्सेस? See, we have ample reasons to be not only satisfied, to be very, very
हैप्पी अबाउट इट। हम लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड किए थे इन लोडिंग, इन मूवमेंट, इन एफिशिएंसी, इन पैसेंजर अर्निंग एटसेट्रा। एंड दिस फाइनेंशियल ईयर व्हिच कंक्लूडेड ऑन 31st of March 2023, दैट मीन्स ऑन 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर गया, वी हैव एक्सीडेड ऑल आवर टारगेट्स एंड वी हैव एक्सीडेड ऑल आवर ओन परफॉर्मेंसेस। Therefore, we are extremely happy. I give the entire credit of this great success to 18,000 employees of the division and our rail users, our customers, big customers like both the ports and NMDC, RINL. Everybody has contributed their might. Everybody has done well, and they have made an ecosystem of efficiency, because of which we are able to perform extraordinarily well, and we have made new milestones, and we have broken our own records. हम लोग लास्ट ईयर करीब 8,600 ऑड करोर्स अर्न करके दिए थे इंडियन गवर्नमेंट की किटी को। दिस ईयर वी हैव क्रॉस्ड 9,300 crores. So this is a sterling performance. I thank the employees again, and I thank the rail users, the customers, the passengers, and the entire ecosystem, press, media, सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। और रेलवे बोर्ड का बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर्स ऑफिसर्स का, हमारे जनरल जीएम साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद है इसमें, हमारे माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बड़ा इसमें मार्गदर्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। Sir, for the next year, what are the new initiatives and the priorities by the Voltaire division? हम लोग हमारा जो लोडिंग है उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू प्रोवाइड ए वर्किंग एनवायरनमेंट व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। ऑलरेडी वॉल्टेयर डिवीजन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सो फार एज वर्किंग एनवायरनमेंट इज कंसर्न। वी हैव फाउंड ए फ्यू मेथड्स ऑफ enforcing discipline among the staff and motivating the staff, taking care of them. So हम लोग कॉलोनीज़ का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और ओल्ड क्वार्टर्स को हम उसका रिपेयर वगैरह का काम कर रहे हैं। एंड रेलवेज़ में कैसे लोडिंग बढ़ेगा, हमारे गुड सेट्स इम्प्रूव होंगे, उसको देख रहे हैं। जहाँ जहाँ डबलिंग चाहिए, कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट करने का काम है, उसको हम लोग एक्सपेडाइट कर रहे हैं। सो वी वांट टू कंटिन्यू द जर्नी, कंटिन्यू द मार्च फॉर एक्सलेंस in the coming years too. What are the expectations which you have from the rail users and the employees of railways? अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। देखिए, रेल यूजर में हमारे बड़े बड़े कस्टमर्स आते हैं, NMDC, RINL, पोर्ट ट्रस्ट, गंगावरम पोर्ट एटसेट्रा, देन वेदांत, एंड कस्टमर्स लाइक माइन ओनर्स लाइक वेदांत, नाल्को एटसेट्रा। उनसे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये लोग अपना परफॉर्मेंस और बेटर करेंगे, बेहतर करेंगे, सो दैट द इकोसिस्टम ऑफ फ्रेट लोडिंग इम्प्रूव्स। From the passengers, I pray them to take care of the railway assets, not to destroy. अभी हमारे नज़र में आया है कहीं कहीं जगह में, our other divisions, in some parts of our division also, there have been incidents of stone pelting at the Vande Bharat and other trains. हम लोगों से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि रेलवे का संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि उसमें बहुत बेटर एक रिएक्शन हमको पब्लिक से मिलेगा। एंड सो फार एज माई एम्प्लॉइज आर कंसर्न, आई एम 100% श्योर दैट they will give their best, hard work, sincerity, dedication में कोई कमी नहीं रहेगा। आगे चलकर हम लोग और अच्छा करेंगे, so that we retain our position among the top divisions of Indian Railways. आपका एडवाइस क्या है जो यंग सिविल सर्वेंट्स हैं और ऑफिसर्स हैं, आपका एडवाइस क्या होगा उनके लिए? मेहनत मेहनत मेहनत, good focused action on anything that we undertake, sincerity, honesty, सरकार के जो सपने हैं, पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है, उसको फुलफिल करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो अगर करें कोई सिविल सर्वेंट, देन ओनली हिज लाइफ, हिज प्रोफेशन बिकम्स मीनिंगफुल। तो हमारा ये एडवाइस रहेगा, और मेहनत करें, लोगों के जो एक्सपेक्टेशन है उसमें खरे उतरने की कोशिश करें, सरकार के जो प्रायोरिटीज़ है उसके ऊपर ध्यान दें, और ट्रांसपेरेंटली, ओपनली, हार्डवर्क के साथ देश को, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो सर, ये वॉल्टायर डिवीजन टूरिज्म के लिए क्या क्या कर रहा है? वॉल्टेयर में ऑल ओवर द डिवीजन देयर आर ग्रेट पोटेंशियल्स ऑफ टूरिज्म। We have got Arku Valley, we have got Koraput area, we have got Bastar, one of the most scenic, beautiful places of the country. They are part of Voltaire division. Therefore, यहाँ हर वक्त ये कोशिश किया गया है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट जाएं,
अर्कू वैली में, कोरापुट एरिया में, एंड उधर दामनजोड़ी है, लक्ष्मीपुर है. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज ऑफ आंध्रा एंड छत्तीसगढ़, दे आर ऑल पार्ट ऑफ वॉल्टर डिवीजन. सो हम लोग यहाँ विस्टाडोम कोच चलाते थे. अब हम लोग विस्टाडोम कोच की संख्या बढ़ा दिए, 6 टाइम्स कर दिए. डेली अर्कू वैली के लिए 2 से 3 विस्टाडोम कोच एंड किरंडुल के लिए 2 to 3 विस्टाडोम कोचेस ट्रेन में लग के जाते हैं, और उसमें टूरिस्ट की संख्या भी बहुत बढ़ी है. अभी रिसेंटली हम लोग सोचे हैं कि टूरिस्ट स्पॉट्स में कोच रेस्तोरां, पॉड होटल्स, ये सब हम लोग प्लान करेंगे. एंड स्टेट गवर्नमेंट का सहायता भी मैं मांगा हूँ. आई हैव पर्सनली रिटन टू दी टूरिज्म सेक्रेटरीज ऑफ ऑल दी 3 स्टेट गवर्नमेंट्स. सो मुझे आशा है आगे चलकर टूरिज्म का बहुत डेवलपमेंट होगा ओवर दी वॉल्टर डिवीजन, एंड मोर नंबर ऑफ टूरिस्ट विल कम टू दिस एरिया. यहाँ हमारे सिंहाचलम टेम्पल हो, विशाखापट्टनम सिटी हो, अर्कू वैली हो, बोरागुहालू केव हो, या तो कोरापुट का सुंदर वादी हो, यहाँ लोग ज़रूर ज़्यादा संख्या में आएंगे और टूरिज्म का बहुत डेवलपमेंट होगा, ऐसा मेरा आशा है. तो सर जो ऐसे स्पेशल ओकेजन्स रहता है जैसे फेस्टिवल्स हो गए, तो तब रेलवे की तरफ से, वॉल्टर डिवीजन की तरफ से क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं आप? फेस्टिवल्स में हम लोग स्पेशल ट्रेन चलाते हैं. यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट लास्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ we had run more than 400 special trains over वॉल्टर डिवीजन, और अलग अलग जगह के लिए, साउथ के लिए, दैन टूरिस्ट पिलग्रिमेज स्पेसेस के लिए हम लोग ट्रेन चलाते हैं. रिसेंटली ऑल्सो वी हैव गॉट परमिशन फ्रॉम रेलवे बोर्ड टू रन स्पेशल ट्रेन्स फॉर वाराणसी फ्रॉम विशाखापट्टनम. ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था यहाँ के लोगों का. पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमसे बहुत बार मिले थे, एंड हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेलवे बोर्ड को कि अभी हमको परमिशन मिला है, और ये बहुत ही पॉपुलर ट्रेन होने जा रहा है. इसका बुकिंग ओपन होते ही पूरा 100% बुकिंग हो गया, वेटिंग लिस्ट चालू हो गया. देयरफॉर वी आर रनिंग स्पेशल ट्रेन्स. पूरी से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के गंगा सागर एंड वाराणसी, गया, ऑल दीज प्लेसेस आर बीइंग कवर्ड. सो on festive occasions we run trains to all parts of the country as far as possible. Sir, you just told us about your employees. What steps do you take to increase the efficiency of your employees? आप उनको मोटिवेट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट के जितने फंडे हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम सबका यूज़ करते हैं. वी मोटिवेट देम, वी ट्राई टू इन्वॉल्व देम इन वर्क, वी एनालाइज देयर वर्क. हम उनका जॉब का एनालिसिस करते रहते हैं, एंड वी ट्राई टू एनफोर्स डिसिप्लिन ऑल्सो. इस डिवीज़न का एक बहुत बड़ा समस्या था कि कुछ हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज़ यहाँ काम नहीं करते थे और दुनिया भर का नेफरियस एक्टिविटीज़ में एंगेज होते थे. वी हैव ट्राइड टू डिसिप्लिन देम बाय counseling them in the beginning, keeping a watch over them, and in some cases taking very firm action against the defaulting employees. बाकी लोगों के लिए हम उनका हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा उसके लिए उनको बीच बीच में हेल्थ चेकअप कराते हैं, and we advise them if necessary, whenever necessary we strongly advise them to take care of their health also. Then जहाँ बहुत दिन से कोई एम्प्लॉय है उसके रोटेशनल ट्रांसफ़र को हम लोग एनफोर्स करते हैं. we use साम दाम दंड भेद everything to get performance from the employees. We love them, we counsel them, we guide them, and whenever necessary we take discipline. So sir, when you look back at your career of 28 years, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है रेलवेज के साथ? खट्टा मीठा. Railways are a great organization. It's a privilege, it's a great opportunity, it's a really matter of joy to be part of this great fantastic organization. हमारा अच्छा भी रहा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला. अगर हमको पूरा जीवन में फिर से कभी मौका मिले जन्म लेने का तो हम भारतवर्ष में लेना चाहेंगे, और प्रोफेशन के हिसाब से रेलवे ऑफिसर का प्रोफेशन ही हम चुनेंगे. रेलवे से एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत कुछ कर दिखाने का इसमें स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है. तो मेरा तो बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैड चूजन रेलवेज एंड रेलवे ट्रैफिक सर्विस, और मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज एंड रेलवेज आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड टू वर्क विथ. Sir, what are the initiatives which have been taken to enhance sports by Walter Division? आप सेफली वॉल्टर को इंडियन रेलवेज का स्पोर्ट्स कैपिटल बोल सकते हैं.
विशाखापट्टनम में वाल्टर डिवीज़न में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है दे आर दी रेयरेस्ट इन द कंट्री। विशाखापट्टनम शहर में इतना स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम आंध्र का ही स्पोर्ट्स कैपिटल अगर कहना है तो विशाखापट्टनम को आपको कहना पड़ेगा। और विशाखापट्टनम के शहर के अंदर सबसे मैक्सिमम फैसिलिटी हमारे पास हैं। वी हैव गॉट स्विमिंग पूल्स, वी हैव गॉट बैडमिंटन कोर्ट्स, वी हैव गॉट फैसिलिटी फॉर टेनिस, वॉलीबॉल, एनीथिंग यू नेम, क्रिकेट, एनीथिंग, बॉक्सिंग, एवरीथिंग, स्क्वाश। सो हम लोग ये सब को मॉडर्नाइज किए हैं, उसको इम्प्रूव किए हैं फैसिलिटीज़ में। एंड वी हैव इन्वॉल्व आवर एम्प्लॉयज़। अभी भी हमारा इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मेला चालू है जहाँ मोर देन 500 एम्प्लॉयज़ आर पार्टिसिपेटिंग। वी हैव डन इट लास्ट ईयर ऑल्सो। अभी हमारे यहाँ एक समर कैंप चल रहा है जहाँ हम रेलवे एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री में जो भी चाहें वो समर कैंप में कोचिंग उनको दे रहे हैं, स्विमिंग में, फुटबॉल में, एवरीथिंग, चेस से लेकर के बैडमिंटन से लेकर के। एंड आवर एम्प्लॉयज आर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़। मुझे विश्वास है कि ये फैसिलिटीज़ हम आगे चल के और बढ़ाएंगे। हम क्रिकेट, मेरा प्रपोजल है, हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें हम फ्लड लाइट्स की व्यवस्था करेंगे। फुटबॉल स्टेडियम इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड विथ फ्लड लाइट्स। सो आगे चल करके मजबूती से हम अपना जगह बना के रखेंगे इंडियन रेलवेज़ में एज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडियन रेलवेज़ एंड वाल्टेर इज द स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। When you look at the future, what you expect and what you dream for division of Voltaire and for you as a person? पर्सन्स मैटर नहीं करते हैं। मैं पहले पर्सन वाला जवाब देता हूँ। हम तो उधर जाएंगे जहाँ ऑर्गेनाइजेशन हमको लेके जाएगा, भारत सरकार लेके जाएंगे, जो सरकार का आदेश रहेगा, जैसा रहेगा। आई एम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग माई टेन्योर हियर। इसलिए वो तो जो ईश्वर की इच्छा होगी और भारत सरकार की जो प्रायोरिटीज़ होंगी उसके अनुसार हम चलेंगे। अबाउट द डिवीज़न आई एम 100% श्योर दैट इन द कमिंग ईयर्स एंड मंथ्स द डिवीज़न विल सर्टेनली एक्सेल again and again. It will definitely remain as one of the best, most efficient divisions of Indian Railways. और इसमें जो bottlenecks है, हम de-bottlenecking का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं। ये सब जैसे प्रोग्रेस करेगा, यहाँ मोबिलिटी और बढ़ेगा, लोडिंग और बढ़ेगा, रेवेन्यू अर्निंग और बढ़ेगा, पैसेंजर कंफर्ट और बढ़ेगा, मोर नंबर ऑफ ट्रेन्स और डील होंगे। सो दिस डिवीजन हैज़ ए गोल्डन फ्यूचर and it will always remain a blue chip premier division of Indian Railways and जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ, जो उनके परिवार हैं, उस सबके लिए हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये जो यात्रा है अच्छाई की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ, ये यात्रा जारी रहेगा। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला रेलवेज के बारे में। थैंक यू सर। God bless you. Take care of yourself. Thank you. వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.